Hello everyone and a very good evening to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So if I am audible and visible, just write in the comments, yes sir, you're audible. अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो yes sir, you're audible, so that we can start our session. Okay, so basically in this class, I hope you are aware, we'll be discussing the GK crash course. Of course, it's a sort of a revision series at 7 p.m. Where I'll be asking some important questions from current affairs as well as from static. Okay, so I'll be asking questions. If you are able to answer it, you should answer in the comment section. Otherwise, I will explain the answers. Okay, so let's start. But before that, I'll be discussing some previous year analysis of XAT exam as well. कुछ previous year analysis भी करेंगे. जैसे for example in XAT last year, the questions, topic wise questions were like this. Polity means like constitution, governance and all. They asked one question. From international affairs, they asked 3 questions. From national affairs, they asked 2 questions. From geography, 2 questions. Books and authors, very famous, 2 questions. Appointments. So they ask questions from appointments, like if someone is appointed at a very important position. Then 2 questions from economics, of course. MBA, if you do MBA, then there are a lot of things associated with economics, finance and all. Then science and technology, 1 question. Then match the following, there were 4 questions. Similarly, national international organization like United Nations, Shanghai Cooperation Organization, BRICS, SCO, है ना, आपने सुना होगा नाम. Then there is SARC, and these are favorite questions. WTO, World Trade Organization. So they've asked 2 questions from there. Then sports, of course, like Neeraj Chopra and all. So these things were in the news. Then World Cup, of course, and all. And then miscellaneous other topics you can say is 3 questions. Now, so that is what you should be knowing about these things. Now, so let's just start with the question answer. That is the most important thing. So I'll be giving you a question and you are supposed to answer it. Who was the first woman judge to be appointed as in the Supreme Court of India? So basically the question is saying, who was the first woman Supreme Court judge? Now, so you'll be asking, sir, this is a static question. Yes, agreed. But this is now part of current affairs as well. Why? So this is both, you can say, static question as well and as well current affairs. The reason is because she died recently. Recently, I would say hardly 1 or 2 months back. Okay? चूंकि इनकी recently death हुई है, इसीलिए ये question ज़्यादा important हो जाता है. First woman judge of Supreme Court of India was, yes, Refana, Pravilika, you all are right. Yes, Arushi from app, you are right. Saket, yes, the right answer is Justice Fatima Bibi. So D is the right answer. तो अगर आप देखोगे, देखो ये 23rd November की न्यूज है, so hardly you can say 1.5 months back. Justice Fatima Bibi, who broke down barriers to become the first woman judge in Supreme Court, is no more. Okay, they can ask कि there are her other positions as well. So after being retired from Supreme Court as a judge, she was the governor of Kerala, Tamil Nadu as well. ठीक है, तो वो रिटायर होने के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद वो गवर्नर भी रही थी तमिलनाडु की. ठीक है, सो दिस मे माइट आल्सो बी asked in the exam. और कुछ related चीजें हैं which can be asked in exam, like I have seen some questions last year in TISNET and other exams, like how many judges are there in Supreme Court of India? This can be asked. So if anyone knows it, please answer it. I'm waiting for the answers. How many judges are there? And who is the Chief Justice of Supreme Court? Or what we call it as Chief Justice of India. उनका नाम बता दीजिए. So I'll be very happy. ठीक है. So, and Supreme Court is also called as custodian of the Constitution. Custodian या guardian of Constitution, ये सब word लिखते हैं कि which of the following institution is called as custodian or guardian of the Constitution? Then the answer is Supreme Court of India. ठीक है. So how many judges are there? So there are 33 plus 1. Total sanctioned strength is 34 judges. Okay. Yes, Arushi, very good. You're right. है ना. So 33 plus 1 हम क्यों लिख रहे हैं? Because 1 is the Chief Justice of India, the captain. Like for example, when we talk about Indian cricket team, so we can write it like this, 10 plus 1, right? So total 11 members are there. 1 is the captain. Similar to that, we are having 34 judges total. 1 is the Chief Justice and there are other 33 judges. So total in all, we are having 34 judges. So is the Chief Justice of India? Yes, Vinay Dubey, very good, you're right. Justice D.Y. Chandrachud is actually the current Chief Justice of India. In fact, his father was the longest serving Chief Justice of India. Okay. So just have an idea because these questions can be asked in the exam. Okay, so the right answer is D is the right answer. Okay, clear? याद रखिएगा. Okay. Now, and she was from, Justice Fatma Bibi was from Kerala, state of Kerala.
Now let's move on to the next one. Reykjavik is the capital of which country? Ireland, Iceland, Greenland, Monaco. ठीक है, तो कैपिटल्स वगैरह पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम्स में. सो द फेमस कैपिटल्स आई विल टेल यू वंस यू आंसर दिस क्वेश्चन. आफ्टर दैट आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंट कैपिटल्स. ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेट में कि ये कौन से सिटी में है, ये सिटी कौन से कंट्री में है, कौन से कैपिटल है. मैच द फॉलोइंग में स्पेशली दे आस्क. सो यू शुड बी नोइंग अबाउट द फेमस वंस. यस, सो रेकजाविक इज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ आइसलैंड. आयरलैंड में देखिएगा, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है. ठीक है, एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट आइसलैंड. सो बी इज द राइट आंसर. यस विनीत दुबे, यू आर राइट. B is the right answer to this question. Arushi, you are also right. Pravalika, Arushi from app, then Pravalika from YouTube, Ayushi Verma from YouTube, you are right. Rohini from app, yes you are right. B is the right answer. Okay, now the important ones. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं. Here is India. This is Iceland. ठीक है, Iceland की capital Reykjavik है. Okay, now let's talk about the famous capitals and all. ठीक है, तो सारे capitals मैं नहीं बताऊंगा because I know it's difficult to remember the capital of all 193 countries. But the important ones I'll tell you. ठीक है, तो जो important मैं बताते जाऊंगा. जैसे पहले है UAE. The capital of UAE is Abu Dhabi. Now why it is important? Because recently in November we have seen Conference of Parties 28, COP28. Which is actually, this conference happened every year under the aegis of UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. ठीक है, तो UAE में ही एक जगह है दुबई, यहाँ पे हुआ था COP28. ठीक है, but the capital of UAE you should be knowing is Abu Dhabi. ठीक है, याद रखिएगा. The important ones I am highlighting. The next important one is this one, Ethiopia. Ethiopia's capital is Addis Ababa. This is also called as diplomatic capital of Africa. ठीक है, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है यहाँ, इसीलिए we call it as African Union headquarter. ठीक है, then यमन की कैपिटल पता होना चाहिए. सना is actually the capital and all. ठीक है, then जॉर्डन की कैपिटल अम्मान. So important ones I am highlighting. Just try to remember it. नेदरलैंड की जो मेन कैपिटल है वो है एम्स्टरडैम. This you should be knowing about this. Then टर्की की कैपिटल अंकारा है. Please be careful. Istanbul is a very famous city in Turkey. But that is not the capital of Turkey. ठीक है, so the capital is Ankara. ये पता होना चाहिए, basic thing है ना. Then of course Turkmenistan का Ashgabat is there, Kazakhstan का Astana is there. Greece का important है, the capital of Greece, because Greece is a very ancient city. I hope you are aware है ना, in Europe and all. The Athens. ठीक है, so ये पता होना चाहिए. Then the important ones, Iraq की capital Baghdad. ये सब match the following में पूछते हैं. And Iraq there was actually a very famous civilization called as Mesopotamian civilization, है ना. So इसीलिए ये सब important है. Baghdad मैंने देखा है previous year में, they have asked it. Match the following में. ठीक है, so you should be knowing about it. In Thailand का Bangkok, everyone should be knowing it. These are the famous ones. China का Beijing है, ये आपको पता होना चाहिए. Lebanon is in the news because of that Israel-Hamas conflict and all. Lebanon has also been in news. So the capital is Beirut. You should be knowing about it. The next one is Germany, Berlin. ये important है, पता होना चाहिए. ठीक है, स्विट्जरलैंड का बर्न है. साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं. ब्लूम फाउंटेन, केप टाउन एंड प्रीटोरिया. सो बेसिकली साउथ अफ्रीका हैज 3 कैपिटल्स. यू शुड बी नोइंग अबाउट दीज, है ना. जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ होगा. लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट इज हियर एंड एग्जीक्यूटिव मींस द प्रेसिडेंट हाउस इज हियर. ठीक है, so these 3 are actually at 3 different places. You should be knowing it. Brazil capital Brasilia है. Important ones I am highlighting. ठीक है, इजिप्ट का कैरो, ये याद रखना. ठीक है, this can be asked. ठीक है, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स is there. These are important ones. ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, you should be knowing it. वेनेजुला का कैराकस is there, है ना. श्रीलंका का इंपॉर्टेंट है. एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल इज कोलंबो एंड ऑफिशियल कैपिटल जो है वो श्री जवादेनेपुरा कोट्टे. ठीक है, पहले सिर्फ ये हुआ करता था, बट नाउ दिस इज आल्सो द कैपिटल. ठीक है, सो द मेन कैपिटल नाउ अगर डी फैक्टो पूछा जाए तो श्री जवादेनेपुरा कोट्टे को लिखते हैं. ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग इट. दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग. डेनमार्क का कोपेनहेगन, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सीरिया का डमास्कस, बांग्लादेश का ढाका. ओके, कतर का दोहा. ये कई बार दोहा एक्चुअली कतर वाज इन द न्यूज रिसेंटली बिकॉज ऑफ दोज 8 नेवी पर्सनल सेंटेंस टू डेथ. लेटर ऑन देयर you can say punishment was commuted and all. तो वो सब चीज न्यूज में चल रहा था, तो कतर भी इंपॉर्टेंट हो गया है. ठीक है, आयरलैंड का डबलिन है. यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट एज वेल. देन वी हैव द इंपॉर्टेंट वंस इज, इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंट वंस. जिम्बाब्वे का हरारे, ये याद रखिएगा. ठीक है, आई नो इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट वंस हाईलाइट कर दे रहा हूँ. क्यूबा का हवाना, फिनलैंड का हेलसिंकी, पाकिस्तान का इस्लामाबाद. यू शुड बी नोइंग इट. Then we have Indonesia का, earlier it was Jakarta, now they have decided to change it to Nusantara.
सो उन्होंने 1-2 साल पहले डिसाइड किया था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल मूव टुवर्ड्स नूसंतारा. इसराइल का एक्चुअली दीज आर वेरी डिस्प्यूटेड बट यू शुड बी नोइंग इट मोस्टली. जेरूसलम अगर ऑप्शन में, सो गो फॉर दैट. इफ इट इज नॉट रिटन देन गो फॉर तेल अवीव इन द ऑप्शन. However, most likely जेरूसलम ऑप्शन में होगा. और पैलेस्टीन का कैपिटल रामल्ला लिखते हैं. ठीक है, दिस ऑल्सो यू शुड बी नोइंग इट. अफगानिस्तान का काबुल है. एवरीवन यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है. देन नेपाल का काठमांडू. हियर यू विल फाइंड द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क. ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, सार्क हेडक्वार्टर. इट्स एक्चुअली इन काठमांडू, नेपाल. ओके, यस. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस. मलेशिया का कुआलालंपुर भी है, पुत्रंजय भी. दीज टू आर द कैपिटल. Then Ukraine, ये बहुत इंपॉर्टेंट है because Russia-Ukraine war is happening. So they can ask what is the capital of Ukraine. So Kyiv ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं. Both are actually the spelling of Ukraine. ठीक है. Then we have Peru का Lima. ठीक है. United Kingdom of Britain, England, whatever you can say is London. ये तो सबको पता होना चाहिए hopefully, है ना. Then we have actually Spain का Madrid. This is important one. You should be knowing it. Maldives का Malé is there. This is our actually neighbor, southern neighbor, just south to Sri Lanka. You will find this country. ठीक है. बहरीन का मनामा. फिलीपींस का मनीला. नाउ फिलीपींस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल फाइंड द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना. ये एशियन नोबेल प्राइज को हम लोग कहते हैं, यानी वो भी देती है. रैमन मैग्सेसे अवार्ड, है ना, इज ऑल्सो गिवन बाय दिस कंट्री एंड ऑल. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, है ना. सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स करा दे रहा हूँ. बेलारूस का मेंस, ये पता होना चाहिए. मोनाको का, ठीक है, मोनाको है. रशिया का मॉस्को है बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर इज हैपनिंग. यू शुड बी नोइंग इट. Muscat is actually the capital of Oman. ठीक है. So important ones I have highlighted. ये important है. This is our neighbor. So Myanmar's capital earlier was Yangon, but recently, I mean few years back, it got changed to Naypyidaw. ठीक है. India का New Delhi. I hope everyone is aware of this. ठीक है. So Greenland का Nuuk है या Godthab भी कहते हैं. ठीक है. So just have an idea. Norway का important है. Oslo. It gives Nobel Peace Prize. है ना. We have discussed it on our paid classes. है ना. फ्रांस का पेरिस है. Everyone should be knowing about it. अच्छा, एक चीज और you should be knowing it, that French President Emmanuel Macron will be the chief guest. Emmanuel Macron will be the chief guest for 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड, है ना. इस बार जो रिपब्लिक डे परेड होगा उसमें चीफ गेस्ट होंगे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रेंच प्रेसिडेंट. सो दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम. ठीक है. ओके. कंबोडिया का नॉम पेन है, ये आपको याद रखिएगा. ट्रिनिडाड टोबागो का पोर्ट ऑफ स्पेन है. दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस. नॉर्थ कोरिया का प्योंगा, है ना. देन सऊदी अरब का रियाद इज देयर. द इंपॉर्टेंट वंस आई एम हाइलाइटिंग. इटली का रोम है. प्लीज रिमेंबर इट. ठीक है. आइसलैंड का रेकजाविक, आई हैव जस्ट डिस्कस्ड इट, है ना. मोरक्को का भी कभी कभी न्यूज में रहता है. रबात, जस्ट रिमेंबर इट. वी हैव सीन अर्थक्वेक्स इन मोरक्को फ्यू मंथ्स बैक. ओके. सो दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम. चिली का सैंटियागो है. ठीक है. देन साउथ कोरिया का सियोल इज देयर. सिंगापुर का इज सिंगापुर. ठीक है. कुछ लोग पूछे सर स्विट्जरलैंड का. स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न. ठीक है ना. हालांकि जेनेवा भी वहां पे एक बहुत फेमस जगह है, बट जेनेवा इज नॉट द कैपिटल. BERN, बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड. ठीक है. सिंगापुर कैपिटल सिंगापुर ही है. ठीक है. देन इसमें से उतना इंपॉर्टेंट तो हमको नहीं लग रहा है. ठीक है. अगर बल्गारिया की याद रख सकते हो, इट्स पॉसिबल, सो यू कैन रिमेंबर इट. ठीक है. तैपी ताइवान का. ईरान का तेहरान. यस, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये कई बार न्यूज में रहता है. भूटान इज आवर नेबर, सो द कैपिटल इज थिम्पू. दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है. जापान का टोक्यो. रिसेंटली वी हैव सीन अर्थक्वेक्स इन जापान एंड ऑल. ठीक है. जापान कई बार न्यूज में रहता है. ओके. यूएस का वॉशिंगटन डीसी. हियर यू विल फाइंड द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF एंड मेनी अदर थिंग्स एंड ऑल, है ना. आपको पता होगा न्यूजीलैंड का वेलिंगटन इज देयर. ठीक है. द स्मॉलेस्ट कंट्री इज वेटिकन सिटी. आई होप यू आर अवेयर, है ना. सो दीज आर द थिंग्स, the important ones I have discussed. Now let's move on to the next one. Which of the following does not have a bicameral legislature? Bicameral legislature मतलब two houses. ठीक है. तो स्टेट्स में जैसे पार्लियामेंट में we have लोकसभा एंड राज्यसभा. Similarly at state level we have two houses. एक को कहते हैं legislative assembly, है ना, and another one is called as legislative council. Okay. So legislative assembly के members को MLA कहते हैं, member of legislative assembly, and legislative council के member को MLC कहते हैं, member of legislative council. But legislative assembly you will find in all states. ठीक है. Wherever you will find chief minister, even in union territory like Delhi, Puducherry we have. But legislative council is only in 6 states. हर state में नहीं होता है. ठीक है. Yes, Jammu and Kashmir will be a union territory. Is a union territory. The government has promised that they'll be conducting legislative assembly elections. अभी हुआ नहीं है, but yes, the government has promised. But there is no legislative council. ठीक है. तो it will be considered as unicameral. है ना. One house. That's unicameral. Yes, Harsh.
Pravalika, Gaurav, you all are right. Rohini, Ross from app, Arushi, you all are right. A is the right answer. बाकी सबका देखो 6 states है. We are having 6 states. Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Orissa, Telangana, Bihar and UP. We have 6 states having 2 houses, both legislative assembly as well as legislative council. ठीक है. Otherwise we only have अच्छा यूनियन टेरिटरीज में वी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक जम्मू एंड कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, सिमिलरली पुडुचेरी है हो गया, है ना. सो दे हैव चीफ मिनिस्टर्स, सो इट मींस लेजिस्लेटिव असेंबली होता है तभी तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, है ना. जम्मू एंड कश्मीर में देयर इज अ प्रॉमिस, मींस द गवर्नमेंट हैज सेड दैट दे विल बी कंडक्टिंग इलेक्शंस. इन फैक्ट रिसेंटली देयर वाज अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 370. उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट इलेक्शन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड कंडक्ट इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, है ना. That is what has also been discussed. ठीक है, okay, हाँ, ठीक है. Let's move on. Which of the following provisions of the Constitution was adopted from Canadian Constitution? ठीक है. I hope you are aware that Indian Constitution has been borrowed. The provisions of Indian Constitution has been borrowed from different places, right? तो इसमें से कौन सी चीज है जो हम लोग कनाडा से लिया है? DPSP, रूल ऑफ लॉ, रेसिडुअल पावर्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. What is the right answer? बताइए. Anyone? Yes, Pravalika is right. C is the right answer. Anyone from app? Yes, residual powers to the center. देखो DPSP तो आयरलैंड से लिया है, ठीक है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके से. देखो these are famous ones. जैसे ऑस्ट्रेलिया से we have taken concurrent list, ठीक है. Joint setting of houses. Canada से फेडरेशन with strong center, residuary powers of the center, ठीक है. आयरलैंड से this is very famous, DPSP, ठीक है. प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जापान से लिया गया है. फंडामेंटल राइट्स वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसए, ठीक है. सो हियर द राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, श्री जयवर्धन पूरा कोटे इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ विच कंट्री? लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी जहां पार्लियामेंट हो, है ना, लेजिस्लेचर. सो भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका. अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किया है. सो आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस. प्लीज आंसर इट. बताइए. श्री जयवर्धन पूरा कोटे इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ विच कंट्री? Yes, Vineet Dubey, right. The right answer is D. Sri Lanka is the right answer. ठीक है. बाकी तीनों का भी मैंने अभी बता ही दिया, ठीक है. सो है ना, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है कोलंबो, जो जुडिशियल कैपिटल नॉर्थ. देखो यहाँ पे श्रीलंका है, यू विल फाइंड, है ना. ये कोलंबो इसी के पास में, ठीक है. यस, प्रवलिका, प्रेक्षा, साकेत, यू ऑल राइट. जॉन, रोहिणी फ्रॉम ऐप, यू ऑल राइट. डी इज द राइट आंसर. The world's largest river lies in which of the following continent? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका. ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है. तो जब आप आंसर करोगे पहले आप थिंक कर लो फिर आंसर करना. ओके. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट. अब देखो यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा है, लॉन्गेस्ट नहीं लिखा है. अगर लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, सो व्हाट विल बी द आंसर? सो द आंसर विल बी नाइल, और नाइल रिवर आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलेगा, ठीक है. लार्जेस्ट पूछा जा रहा है यानी कंटेंट, वाटर कंटेंट वाइज पूछा जा रहा है. सो द आंसर इज अमेज़न. अमेज़न रिवर, वेयर यू विल फाइंड इट इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट. पहले बात तो नॉर्थ अमेरिका, देखो नॉर्थ अमेरिका तो नहीं होगा, खैर चलो ठीक है, मैं बताता हूँ. डी इज द राइट आंसर. हाँ, यस, विनीत दुबे, प्रवलिका, साकेत, यू ऑल राइट. यस, आरुषि, यू ऑल राइट. हाँ, देखो रॉस, हाँ देखो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल. तो नाइल कैसे चलती है? यहाँ से विक्टोरिया, ये लेक विक्टोरिया से यहाँ से व्हाइट नाइल निकलेगी और ऐसे जाएगी, ठीक है. और इथोपियन हाईलैंड से ब्लू नाइल निकलेगी, सूडान में खार्तूम में मर्ज करती. सो दिस इज व्हाइट नाइल, दिस इज ब्लू नाइल, ठीक है. और ये फिर इजिप्ट में होकर चली जाती है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है. सो दैट्स लॉन्गेस्ट रिवर. द लार्जेस्ट रिवर है यू विल फाइंड ब्राजील के आसपास, यहाँ पर, यहाँ से गिरती है, ठीक है. तो ये बहुत उसमें वाटर कंटेंट बहुत हैवी होता है. इनफैक्ट देयर इज अ वेरी फेमस रेन फॉरेस्ट हियर. इस फॉरेस्ट का नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है. ओके. और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ऑक्सीजन. देखो पेड़ जो होता है, फॉरेस्ट जो होता है, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन. आई होप यू आर अवेयर, दिस इज अ बेसिक नॉलेज, है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज सिंस इतना बड़ा फॉरेस्ट है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ अराउंड द अमेज़न रिवर. उसी से वो अमेज़न, दैट ई-कॉमर्स कंपनी एक्चुअली हैज बीन नेम्ड फ्रॉम दिस अमेज़न फॉरेस्ट एंड ऑल, ठीक है. सो ये पता होना चाहिए. डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Which river of India drains into Bay of Bengal? माही, नर्मदा, गोदावरी, तापी. बताइए. आपको पता होगा जैसे अगर इंडिया का सदर्न पेनिनसुला है ऐसे समथिंग, तो हियर इज बे ऑफ बंगाल, इंडियन पेनिनसुला है, और यहाँ पे अरेबियन सी है, इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है. बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, राइट.
सो इसमें से कौन सी रिवर है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती है? एनीवन? व्हाट इज द राइट आंसर? यस, गोदावरी, वेरी गुड। हाँ, साकेत, विनीत, प्रवलिका, यू आर राइट। हाँ, तो गोदावरी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो, मैं दिखाता हूँ, जैसे गंगा है वैसे जाती है, ठीक है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इट गोज लाइक दिस, है ना, गोदावरी समथिंग लाइक दिस, मेकिंग रफ स्केच, सो दिस इज जी, गोदावरी। अब देखो, ये नर्मदा, तापी, माही, माही यहाँ पे आपको समवेयर मिलेगी, माही, ठीक है, नर्मदा ऐसे मिलेगी, तापी इसके जस्ट नीचे, ठीक है। सो ऑल आर एक्चुअली फ्लोइंग, दीज रिवर्स आर फ्लोइंग इन अरेबियन सी, बट द बिग रिवर्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा भी ऐसी कुछ जाती है, ठीक है, कावेरी हो गई, दीज ऑल एक्चुअली फॉल इन बे ऑफ बंगाल। सो यू शुड बी नोइंग इट, दीज आर बेसिक थिंग्स, आपको पता होना चाहिए, है ना। यस, यस, रिफाना, गौरव, बहुत से लोगों ने आंसर किया, सी इज द राइट आंसर। Contingency fund of the state is at the disposal of Speaker of Legislative Assembly of State, Finance Minister of State, President of India, Governor of State. Contingency fund of state जो है वो किसके कंट्रोल में होता है? तो एक्चुअली क्या होता है, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया ना, और तीसरा को कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इतना डिटेल नहीं जाना, वो आपके लिए नहीं है, आई मीन इट्स स्लाइटली ऑन हायर साइड, ठीक है। और सिमिलरली स्टेट लेवल पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट होता है। तो स्टेट का अगर बात होगा तो ऑफ कोर्स गवर्नर की बात होगी। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया लिखा तो फिर प्रेसिडेंट के हाथ में डिस्पोजल में होता है ना, ये सब आपको बताना चाहिए। हियर द राइट आंसर इज डी, कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। सो बी केयरफुल, द राइट आंसर इज डी, है ना, ठीक है। सो बी केयरफुल, अगर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो प्रेसिडेंट आंसर होगा। हियर द राइट आंसर इज डी, ठीक है। ओके, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन जज ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट? आई नो इट्स अ स्लाइटली टफ क्वेश्चन, अगर आपको आता है सो आई विल बी वेरी हैप्पी, है ना। यूएस सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट ब्लैक वुमन जज कौन है, आपको बताना है। सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना, एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केटांजी ब्राउन ब्रैक जैक्सन, है ना। जैक्सन स्वान एंड बिकम्स फर्स्ट ब्लैक वुमन ऑन यूएस सुप्रीम कोर्ट। ये एक 1.5 साल पुरानी न्यूज है, 1.5 साल पुरानी, बट यस यू शुड बी नोइंग इट, है ना। ओके, okay, yes, B is the right answer. Yes, I have got the right answer. Pravalika was right, Ross was right. Okay, just before moving on, so this is, we are running a XAT 2024 crash course starting at 19th December at 7 p.m. So this is the same series you are watching, and so keep on watching. Subscribe to our channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। So कुछ और क्लासेस है जो अपकमिंग क्लासेस है, यानी tomorrow will be having session at 7 p.m. with Vikrant sir, ठीक है। Then 5th January को will be having session with Gautam Baba sir, ठीक है। Then on 6th January will be having session with Abhimanyu sir। तो आप देख लो जो आपको रिक्वायरमेंट उस हिसाब से you should follow the classes, ठीक है। Subscribe to our channel as well. Okay, and we are running other management interest tests के लिए online classes. We are running 100 plus live session, 250 plus recorded videos, 50 plus mock tests are there, ठीक है। So you can download our app, ठीक है, BYJU'S exam prep, go to CAT section and all, ठीक है। Now, and 7 January को will be having a XAT 2024 detailed analysis. So do follow it on the same YouTube channel. Subscribe to our channel. जैसे एग्जाम खत्म होगा, we'll be having an analysis where you will get to know about actually the question answer and all, the difficulty level, cutoffs, etc. Okay, let's move on to the next one. The question number 10. Which of the following serves as the maritime boundary between India and Maldives? Maritime boundary मतलब maritime मतलब होता है water related, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। इंडिया और मालदीव्स के बीच मैरीटाइम बाउंड्री कौन सा होता है, बताइए। एनीवन ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो। द राइट आंसर इज 8 डिग्री चैनल। देखो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। यस आरुषि यू आर राइट, प्रवलिका यू आर राइट। देखो मैं दिखाता हूँ होता क्या है। ये इक्वेटर जा रहा है, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे आपको मालदीव्स मिलेगा समवेयर हियर, ठीक है। द कैपिटल इज माले, इसकी कैपिटल क्या है, माले। और यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार मिलेगा, ठीक है। ये रफ स्केच है, ये अंडमान एंड निकोबार।
अंडमान एंड निकोबार को जो कट करता है उसको हम लोग 10 डिग्री चैनल कहते हैं। 10 डिग्री चैनल मतलब 10 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री है लैटिट्यूड, सो ये 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और मालदीव्स और इंडिया को जो सेपरेट करता है वो 8 डिग्री नॉर्थ ऐसा कुछ होगा, ठीक है, समवेयर हियर 8 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया दैट व्हाट आर दीस 10 डिग्री पैरेलल, 9 डिग्री पैरेलल एंड ऑल। Okay, yes, Vineet, you all right, huh? The next is which technology is used to encode the bank and branch information on checks for faster processing? EFT, POS, QR code, MICR, RFID. कौन सा यूज किया जाता है चेक वगैरह में? एक्चुअली चेक ऐसे लिखा है ना, जैसे बैंक में चेक काटते ना तो पता होगा आपको, तो उसमें क्या चीज यूज होता है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप कुछ एलिमिनेट कर दोगे। RFID वगैरह पता है क्या यूज होता है? जो टॉल्स वगैरह पे, शायद आपको पता होगा, ये आपने सुना। QR कोड से पेमेंट होता है, जैसे पेटीएम वगैरह में आप पे करते हो तो QR कोड यूज करते हो, ठीक है। सो द राइट आंसर इज MICR। देखो अगर आपने कभी चेक काटा होगा, दिस इज जस्ट अ सैंपल, ठीक है। किसी भी बैंक का जो चेक होता है, आप जब चेक काटते हो तो ऐसे ही कुछ दिखता है, राइट। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेट लिखते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। ये जो होता है वो चेक नंबर होता है ना। यहाँ पे अकाउंट नंबर आप लिखते हो, दिस इज MICR इसको कहते हैं, ठीक है। ओके, इसी की बात हो रही है, ठीक है। सो गो एंड फाइंड आउट, थोड़ा सा बेसिक इसे इकोनॉमिक्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। IFSC कोड होता है, हर बैंक के ब्रांच का एक IFSC कोड होता है। इफ यू हैव द बैंक अकाउंट यू शुड बी नोइंग इट, ये बेसिक चीज है और आई होप कि आपको ये इतना बेसिक पता होगा, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू क्वाड दैट इंडिया इज अ पार्ट अलॉन्ग विद US, UAE एंड इजराइल? इसका आंसर बताइए, बिकॉज क्वाड हैज बीन वेरी मच इन द न्यूज। न्यू क्वाड कौन सा है जो कि US, UAE, इजराइल और इंडिया जिसका पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? एक्चुअली इसका एक और नाम है इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड भी कहते हैं इसको, इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड। इस तरह की लैंग्वेज भी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स यूज करते हैं। यस, वेरी गुड प्रवलिका, यू आर राइट, इज द राइट आंसर। I2U2, देखो आंसर इसी में छुपा है। I2U2 यानी 2 I है और 2 U है, ठीक है। 2 I में एक I हो गया इंडिया, एक I हो गया इजराइल, एक U होगा USA, एक U होगा UAE। ये बात हो रही है ना, ठीक है। ओके, अब देखो ये न्यू क्वाड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज देयर इज एन ओल्ड क्वाड। जो मेन क्वाड है वो क्या है? वो है देखो आपको पता होना चाहिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान, ये लोगों ने मिलकर क्वाड बनाया। देखो क्वाड आप पढ़ते हो ना मैथ्स में, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको कहते हैं क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। तो क्वाड क्या? तो क्वाड्रिलैटरल ये होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलैटरल हैविंग 4 साइड्स एंड ऑल। तो ये ओरिजिनल क्वाड जो है उसमें US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया न्यू क्वाड। न्यू क्वाड में क्या है? इसमें कुछ अलग है, ठीक है। इंडिया है, यहाँ पर इजराइल है ना, और ये UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये इजराइल हो गया, और ये USA, ठीक है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड कहते हैं? बिकॉज एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज in 2020 we had seen agreement between Israel and UAE brokered by USA. Okay, उस अग्रीमेंट का नाम रखा गया था अब्राहम अकॉर्ड। ओके, तो जिसमें अगर इंडिया भी शामिल हो गया सो इट बिकम्स इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड, ठीक है। तो न्यू क्वाड को या वेस्ट एशिया क्वाड भी वर्ड यूज करते हैं, वेस्ट एशिया क्वाड, बिकॉज वो वेस्ट एशिया ना, जो UAE और इजराइल जो है वेस्ट एशिया में आता है। या न्यू क्वाड, इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड, दीज आर द टर्म्स बीइंग यूज्ड, ठीक है। खैर ये सब पता होना चाहिए बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच कम्स इन द न्यूज एंड ऑल। Okay, which of the following Indian authors has won India's richest JCB prize for literature 2023? ठीक है, माधुरी विजय, झंपा लहिरी, चित्रा बनर्जी, दीवा करुणी, पेरुमल मुरुगन। What is the right answer to this question? JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 कौन से इंडियन ऑथर ने जीता है? बताइए। ये अभी आई थिंक ये प्राइस 2018 से स्टार्ट हुआ, पहले नहीं होता था, बट दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। देखो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बुक के भी नाम याद रखना, अवार्ड्स में भी सेक्शन में भी आ सकता है। यस, द राइट आंसर इज डी, वेरी गुड प्रवलिका, यू आर राइट। एंड यस, आरुषि रॉस फ्रॉम ऐप इज आल्सो राइट, यूट्यूब से विनीत दुबे, यू आर राइट, गुड। देखो ये लेट मी शो यू, दिस इज द बुक, ठीक है। फायर बर्ड ये किताब का नाम है, एंड द ऑथर इज पेरुमल मुरुगन। ही इज वेरी फेमस ऑथर फ्रॉम एक्चुअली साउथ इंडिया, आई थिंक फ्रॉम तमिलनाडु, है ना। सो ही हैज रिटन इट, है ना। सो जस्ट हैव एन आइडिया, JCB प्राइज फॉर लिटरेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। सो जस्ट हैव एन आइडिया ना।
ओरिजिनल जो टाइटल है वो आलांदा पाची, दिस इज द ओरिजिनल लैंग्वेज, बट इट इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज फायरबर्ड. ओके, यस. Let's move on. Now, it was established in 2018 and the award given is 1 10 100,000 10 lakh 10 lakh 25 lakh रुपए, बहुत हेवी अवार्ड है. ठीक है, इट्स गिवन है ना, वर्किंग इन इंग्लिश और ट्रांसलेटेड है ना बाय एन इंडियन राइटर एंड ऑल. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया. Okay, let's move on. इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा. The next one is in November 2023 who has been appointed as the brand ambassador of West Bengal. काजोल, नीरज चोपड़ा, शाहरुख खान, सौरभ गांगुली. वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? एक्चुअली ना शाहरुख खान ना पहले थे. आई मीन ही इज हैविंग अ टीम कॉल्ड एज कोलकाता नाइट राइडर्स एंड ऑल. उनका शेयर वगैरह भी है आईपीएल में. सो ही वाज अर्लियर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड रिसेंटली वी हैव सीन अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल. तो ये तो आंसर नहीं होगा. व्हाट शुड बी द आंसर? The answer is yes, Saurav Ganguly. He is actually from the state of West Bengal. So D is the right answer. Yes, Vineet Dubey, Pravalika, Saket, Arushi and Ross from app. Yes, Akash Roy. Yes. Mamata Banerjee announces Saurav Ganguly. He has been the former captain of Indian cricket team और BCCI में भी रह चुके हैं ना. I hope you are aware of these things है ना. Former BCCI president, former captain of Indian cricket team है ना. So everyone knows it. The cricket lover knows him better है ना. So D is the right answer. Let's move on to the next one. Which of the following countries launched world's largest single site solar power plant? UAE, Japan, India, USA. वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट किसने लॉन्च किया है? बताइए. The right answer is UAE. A is the right answer to this question. World's largest single site solar power plant launched in Abu Dhabi. मैंने बताया Abu Dhabi is actually the capital of UAE है ना. A is the right answer. Yes, Pravalika, you are right. Arushi from app, you are right है ना. देखो यहाँ पे है, ये इंडिया है, ये यूएई है. ठीक है, यही आपको मिलेगा दुबई, अबू धाबी, ऑल यू विल फाइंड इट हियर. अ लॉट ऑफ इंडियंस गो डू द जॉब, बिजनेस एंड ऑल. काफी सारे इंडियंस जाते हैं दुबई, अबू धाबी, यूएई में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं. आपको पता होगा, हो सकता है आपके भी कोई रिलेटिव हो यहाँ पे. ओके, द नेक्स्ट इज हु हैज रिसेंटली वन द 26th वर्ल्ड टाइटल इन बिलियर्ड्स. बिलियर्ड्स इसको कहते हैं है ना. ये तो जानते होगे. इंडिया में कम खिलाता है बट यस, यू शुड बी नोइंग इट. 26th world title in billiards. What is the right answer? Anyone? The right answer actually is Pankaj Advani. देखो ये बहुत famous है actually. He is Pankaj Advani है ना. The right one, the winner है ना. So ये इनका नाम कई बार आता है, मैंने पहले भी देखा है. He has won a lot of billiards tournament and all. Yes, Arushi, Rohini, you all are right. Pravalika from app, Vineet Dubey from YouTube. You all are right. Okay. The next is which of the following West Indies player has been handed a 6-year ban from all forms of cricket by ICC? आईसीसी ने किस वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी को 6 साल के लिए बैन लगा दिया है? आईसीसी का भी हेडक्वार्टर दुबई में. ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का. ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए. द राइट आंसर इज यस, विनीत दुबे. वेरी गुड. हाँ, मार्लन सैमुअल्स. ठीक है, ये मार्लन सैमुअल्स हैं एंड और एंटी करप्शन कोड ब्रीच, कुछ कोड था, मतलब कोड मतलब कुछ रूल वगैरह होगा, एंटी करप्शन को उन्होंने वायलेट किया. ब्रीच मतलब होता वायलेट करना, रूल वायलेट करना. So he might have violated some rules and all, because of which he was actually banned for 6 years. So B is the right answer. Yes, Pravalika, you all are right. Saket, Ross from app. Yes, Neeraj, you all are right. The next is who received Best Actor Award at Stars Asian International Film Festival SAIFF 2023. Leonardo DiCaprio, Ishwak Singh, Joaquin Phoenix, Antonio Banderas. What is the right answer? Stars Asian International Film Festival में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? बताइए. Yes, the right answer is Ishwak Singh. The B is the right answer. ठीक है, on bagging the best actor award for at Berlin SAIFF है ना. ये आपको पता होना चाहिए. Just have an idea. Okay, yes, Neeraj, Vineet Dubey. Yes, B is the right answer. जिन्होंने B आंसर किया, you all are right. हाँ, yes, Arushi from app, you are right है ना. Pravalika, you are also right. The next is which country's embassy has announced its permanent closure in New Delhi? कौन सी कंट्री की एम्बेसी ने पूरी तरह कह दिया कि अब हम बंद कर दे रहे हैं अपना एम्बेसी? एम्बेसी समझते हो ना, जब फॉरेन कंट्री का ये होता है, मिशन होता है. नॉल कनाडा, ताइवान, चाइना, अफगानिस्तान. व्हाट इज द राइट आंसर? What is the right answer?
The right answer is, some people will be thinking Canada, but लेकिन Canada ने नहीं ऐसा किया. The right answer is D. Yes, there have been some issues with Canada. In fact, some diplomats were asked to leave and all, but permanent closure की बात नहीं हुई है. ठीक है, Canada में open है, so A should not be the answer. The embassy of Canada is open. People are coming nowadays, है ना. बीच में कुछ issues हो गया था. Yes, we agree. We have, I mean, some of the diplomats were asked to leave and all, but that's not. This is not a correct way to say कि permanent closure हो गया. But Afghanistan निकली भाई. This was in the news and all. The reason is, देखो, I hope you are aware. In August 2021, Taliban came to power, and before August 2021, this was an embassy. ठीक है. So this embassy was representing, जो यहाँ लोग थे, officers थे, they were representing the government which were before August 2021. ठीक है. तो अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट थी उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे. अब उनको तो सरकारी चलेगी वहां, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? You got the point? So these, the officers, I mean the people actually who were sitting inside this embassy were actually representing the old government. So of course, the sense, it does not make sense because the transfer of power has happened. So they decided to permanently close it. ठीक है, याद रहेगा? So please do not answer Canada. The answer is Afghanistan. है ना? Okay. The next is, who has won prestigious Booker Prize? ये सब मैंने पेड क्लासेस में पढ़ाया भी है. मार्गरेट एटवुड, पॉल लिंच, अमांडा फॉरमैन, अन्ना बर्न्स. और बुक का नाम बता दो कि सो आई विल बी वेरी हैप्पी. ये आई थिंक 26 नवंबर को लास्ट ईयर अनाउंस किया गया था. बुकर प्राइज 2023. यस, पॉल लिंच. वेरी गुड, विनीत दुबे. हाँ, द राइट आंसर इज पॉल लिंच फॉर द बुक. किताब का नाम बताइए. प्रॉफिट सॉन्ग बुक का नाम है, पॉल लिंच ऑथर का नाम है. ठीक है. यस, विनीत दुबे, गुड. प्रवलिका, यू आर राइट. She from app is also correct. B is the right answer. Similarly, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है, वो दिया गया था टाइम शेल्टर बुक को, and the name of the author is Georgi Gospodinov. ठीक है. और he is actually a Bulgarian writer, so his book got translated in English by Angela Rodel. ठीक है. And the name of the book is Time Shelter. ठीक है. तो ये सब याद होना चाहिए. These are basic things and these are very important actually. ठीक है. So B is the right answer. Let's move on to the next one. Who is the new captain of Gujarat Titans in 2024? Shubham Gill, Pradeep Sangwan, Dasun Shanaka, Matthew Wade. गुजरात टाइटंस के न्यू कैप्टन कौन है, आपको बताना है. What is the right answer? Because I think Hardik Pandya decided to leave it and all, है ना. So after that, a new captain was appointed. Yes, the right answer is Shubham Gill. Yes, Vinay Dubey, you are right. Is the right answer. Pravalika Arushi, you are right, है ना. On Monday, named Shubham Gill as captain to lead the team of Tata IPL, है ना. As after Hardik Pandya has quit the franchising. So the right answer is A. Yes, Saket, Gaurav, you are right. The 51st International Emmy Awards were held in New York City, Chicago, Los Angeles, Seattle. ये सारा अमेरिका में, यूएसए में, चारों जगह. What is the right answer? 51st International Emmy Awards. The answer is New York City. A is the right answer. ठीक है. ठीक है ना. ओके, नवंबर 20 को हुआ था. द नेक्स्ट इज, विच इज द पार्टनर स्टेट ऑफ 42nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023, IITF? वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, मध्य प्रदेश एंड असम, बिहार एंड केरला, यूके एंड उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश. व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ, इससे पहले का आंसर न्यूयॉर्क था. ए वाज द राइट आंसर. साकेत, आर्यन, साक्षी, सूर्य, आदित्य, यू आर द राइट. 42nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर. पार्टनर स्टेट बताना है. यस, प्रवलिका, यू आर राइट. बिहार एंड केरला. सी इज द राइट आंसर. ठीक है. आप देख सकते हो ये 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 14 से 27 नवंबर को हुआ था. एंड वासुदेव कुटुंबकम वाज द थीम. यही थीम था G20 का भी इस साल. आई होप यू आर अवेयर. वासुदेव कुटुंबकम टेकन फ्रॉम महा उपनिषद, है ना. ये सब मैंने बताया भी है. वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज द ट्रांसलेशन ऑफ वासुदेव कुटुंबकम. ठीक है. सो ये जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, भारत मंडपम, वही प्रगति मैदान, उसी जगह हुआ था जहां पर G20 समिट हुआ था. ठीक है. अगर इसमें देखो, आप गौर से देखोगे, हियर इट इज रिटन पार्टनर स्टेट इज बिहार एंड केरला एंड फोकस स्टेट दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी. ठीक है. सो दिस यू शुड बी नोइंग इट. द नेक्स्ट इज, इन विच कंट्री will the International Cricket Council Men's Under-19 Cricket World Cup 2024 be organized? India, South Africa, Sri Lanka, Australia. ICC Men's Under-19 Cricket World Cup 2024 कहां होगा? What is the right answer? Anyone? बताइए.
actually originally it was supposed to happen in Sri Lanka, but now it will be happening in South Africa. So B is the right answer to this question. ठीक है. Okay, South Africa में होगा, देखो है ना, ICC shifts under-19 Men's Cricket World Cup 2024 to South Africa from Sri Lanka. तो पहले श्रीलंका में होने वाला था, but now it will be happening in South Africa. So the right answer is B. Yes, Vinit Dubey, Saket, he will. Neeraj, Sakshi, you all right. Arushi, Rohini, Ross from app, you all are also right. The next is who has become the first Indian to win international Emmy Awards for Best Comedy. R. Madhavan, Vicky Kaushal, Veer Das, Arban Malik. ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं. जहां भी फर्स्ट इंडियन वगैरह आता ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. फर्स्ट इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट कॉमेडी, फर्स्ट इंडियन को मिला है, तो ऑफ कोर्स इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. स्टार मार्केट. बताइए कॉमेडी से रिलेटेड बेस्ट कॉमेडी. सो द राइट आंसर इज वीर दास. सी इज द राइट आंसर. वीर दास विंस मेडन. मेडन मतलब होता है फर्स्ट इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट कॉमेडी, है ना. एंड वीर दास लैंडिंग, ये स्टैंड अप स्पेशल था इनका. ठीक है ना. शेयर द ऑनर विद यूके सीरीज डेरी गर्ल्स एंड ऑल. ठीक है, सो इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा. ठीक है. सो द राइट आंसर इज सी. यस, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. गौरव, नीरज, साक्षी फ्रॉम ऐप ऑल्सो, श्वेता, रॉस, ईश्वरी, Arushi, you all were right. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.